हेलो स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस चल रहा था चैप्टर। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर। फर्स्ट पार्ट लास्ट सेशन में डिस्कस हो चुका था। सी कंजंक्शंस में हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ size, or we can say structure of the conjunction, right? If it is a single word is conjunction, then it is known as simple conjunction, and if it is more than two words, then it is compound conjunction, like this. So now we are going to discuss about coordinating conjunctions. What are coordinating conjunctions? We use coordinating conjunctions to join two words, phrases, or sentence that are of the same rank or are grammatically equal or similar. सो दो ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो एक दूसरे जैसे हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली इक्वल हैं, बराबर हैं, या फिर एक जैसे हैं, सेम रैंक के हैं, राइट। तो अगर दो वर्ड्स हैं तो दोनों सेम वर्ड्स, दोनों सिमिलर वर्ड्स होंगे। लाइक अगर दो एडजेक्टिव्स हैं या दो नाउन है तो दोनों नाउन होंगे, राइट, इस तरीके से। तो ग्रामेटिकली इक्वल होंगे, राइट। ऐसे फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को और वर्ड्स को जो इक्वल हो, सेम रैंक के हो, उन्हें जो वर्ड्स यूज़ ज्वाइन करते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दैट दे ज्वाइन। जिन क्लॉजेस को या वर्ड्स को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करता है उनके बीच में आता है, राइट। लाइक आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी। टायर्ड एंड हैप्पी बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, सेम वर्ड्स, मतलब सेम इन द सेंस मीनिंग वाइज सेम, सेम नहीं, रैंक वाइज सेम, ग्रामेटिकली सेम, राइट। टायर्ड एंड हैप्पी बोथ, दोनों जो है एक कंडीशंस है किसी भी पर्सन की, है ना। तो टायर्ड बट हैप्पी, राइट, बट हेयर इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे रीच्ड ऑन टाइम येट they could not catch the flight. Yet is here the coordinating conjunction. There are four types of coordinating conjunctions. तो coordinating conjunctions के types क्या क्या है? Cumulative conjunctions, right? Cumulative conjunctions किसे कहते हैं? ठीक है, ये एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ता है, राइट। इट एड्स वन स्टेटमेंट टू another. Some examples are for, and, nor, but, or, yet, so, both, and, as well as, no less than, not only, but also. All these are cumulative conjunctions, right? Like dinner was ready, we sat down to eat. If we want to join these two different sentences, what we have to use, we can use so, right? Dinner was ready, so we sat down to eat. Keshvi is talented, Keshvi is articulate, right? So Keshvi is both talented and articulate. So both and is a pair of two words, uh, which which is uh, which is being used as cumulative conjunction here, right? So we are having two more examples here. You can read now. Next type is adversative conjunctions. So adversative conjunctions show the contrast between two statements. Some examples are but, yet, still, whereas, while, only, nevertheless. So यहाँ पे जो adversative conjunctions होते हैं वो दो statements को कंपेयर करने का एक तरीके से काम करते हैं। दोनों में जो कंपैरिजन के बाद डिफरेंस है उसको हाईलाइट करते हैं, राइट। तो इसमें ये आते हैं जो एग्जांपल्स अभी दिए हुए आपके सामने। नाउ वी कैन सी फ्यू sentences also given. I knew the culprit, I kept quiet. So these are the two sentences, right? I knew the culprit and I kept quiet. Now, if we use but in between all these two, then we can join them in to form a single sentence. Like I knew the culprit, but I kept quiet. So I knew the culprit, but I kept quiet is a single sentence which is formed by the two sentences which were given above, and we used but to join them. So here but is the adversative conjunction, right? uh, we are able to see the contrast here in these two sentences, culprit but I kept quiet. So these conjunctions always show a type of comparison, right? And they show the contrast between two statements. It was getting late, we stayed back.
It was getting late, yet we stayed back. Yet here is the adversative conjunction. Coal is black, diamonds are crystal clear. Alternative conjunctions offer a choice between two alternatives. Some examples are otherwise or else, either or, neither nor. Alternative conjunctions दो चीज़ों में, दो ऑब्जेक्ट्स में या दो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स में एक चॉइस हमें ऑफर करता है, चॉइस देता है, राइट? लाइक नीरा मस्ट स्टडी हार्ड और शी विल फेल। तो नीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो फेल हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं। वी हैविंग टू मोर एग्जांपल्स हियर। वी कैन टेक अ बस, we can take the metro. These are the two sentences, right? We can join them by using either or. We can take either a bus or the metro. Similarly, we are having Shahid did not report for work today. Kavita did not report for work today. Neither Shahid nor Kavita reported for work today. Right. Now another type is elative conjunctions. So elative conjunctions suggest an interference or a reason. ठीक है, एक इंटरफेरेंस या फिर रीज़न, वजह हमें बताती है, रीज़न सजेस्ट करती है, राइट? ऐसे वर्ड्स जो रीज़न सजेस्ट करें, ठीक है, और जोड़े भी दो 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 डिफरेंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस को, उसे बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन, राइट? एग्जाम्पल्स आर फॉर, सो, देयरफॉर, राइट? तो ही मिस्ड द बस, हिज फादर ड्रॉप्ड हिम टू स्कूल, राइट? यहाँ पे सो आएगा, ही मिस्ड द बस, सो हिज फादर ड्रॉप्ड हिम टू स्कूल। ये सो क्या है? इलेटिव कंजंक्शन है। क्यों है इलेटिव कंजंक्शन? क्योंकि रीज़न बता रहा है, right? Why father dropped him to school? So this is the question, and answer is he missed the bus, because he missed the bus. So रीज़न को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किया है? सो, राइट? रीज़न को ज्वाइन करने के लिए, रीज़न को और स्टेटमेंट को। He missed the bus, so his father dropped him to school. Similarly, we are having another example. You can see and read. We, when a coordinating conjunction joins the independent clauses, it always correct to place a comma before the conjunction, right? अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होता है तो एक कॉमा लगता है, राइट? इट ऑलवेज करेक्ट टू प्लेस ए कॉमा बिफोर द कंजंक्शन, राइट? कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाते हैं। लाइक वी आर पुटिंग, वी यूज्ड ए कॉमा बिफोर सो इन आफ्टर बस, राइट? ही मिस्ड द बस, comma, so his father dropped him to school. So this comma is used because these two are the independent clauses. He missed the bus, it is an independent clause. Similarly, his father dropped him to school is also an independent clause. Subordinating conjunction, right? Subordinating conjunction क्या होते हैं? Karan took up the challenge though it was a difficult assignment. This sentence has two clauses. Karan took up the challenge and though it was a difficult assignment. So ये दो जो है ना, THOUGH, ये है subordinating conjunction. The first clause, Karan took up the challenge, makes complete sense on its own and hence it is known as an independent clause. एंड इन दिस सेंटेंस द मेन क्लॉज, इस सेंटेंस में ये मेन क्लॉज है, करंट टू अप द चैलेंज, राइट? और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, राइट? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बनाता है. ऑन द अदर हैंड द क्लॉज ऑल्दो इट वॉज ए डिफ़िकल्ट असाइनमेंट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन. ठीक है, ऑल्दो इट वॉज ए डिफ़िकल्ट असाइनमेंट is not an independent clause, right? A clause depends on the main clause in the sentence to be completed in the meaning, right? The second clause is known as a subordinating clause. Second clause को subordinating clause कहते हैं. And the conjunction though is a subordinating conjunction. दो क्या है? Subordinating conjunction है. So a subordinating conjunction is used to join a subordinate or dependent clause to a main clause. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को
यह डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज से पहले आता है आमतौर पे, और सबॉर्डिनेट क्लॉज में कम बिफोर द मेन क्लॉज और आफ्टर इट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, तो इसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसके साथ? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लगा रहेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उससे पहले लगा रहेगा, और वो अगर पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आया है तो वो बीच में आएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और अगर पहले आया है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आएगा स्टार्टिंग में। लाइक आई वेंट स्विमिंग ऑल्दो इट वाज कोल्ड, सो ऑल्दो इट वाज कोल्ड इज बाद में आ रहा है, ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज आई वेंट स्विमिंग के बाद आ रहा है, राइट। तो ऑल्दो भी बीच में आ रहा है, राइट। अगर हम इसको पहले ले आए स्टार्टिंग में, हम बोले इट वाज कोल्ड, सो ऑल्दो इसके पहले आएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ऑल्दो आएगा, ऑल्दो इट वाज कोल्ड आई वेंट स्विमिंग। I think it's clear enough now. Some examples are after, although, as, because, before, how, if, once, since, then. All these are the examples. Subordinating conjunctions may be classified according to time, purpose, condition, comparison, result, reason, right? So all these are the subordinating conjunctions, the types of subordinating conjunctions, right? So time के लिए बिफोर, आफ्टर, एज सुन, एज, सिंस, स्टिल, वाइल, ये सब आते हैं टाइम के लिए, राइट। टाइम प्रपोज कर सकता है बिफोर मतलब पहले बाद में, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, सिंस कब से कब तक, क्या, टिल, वाइल, ये टाइम के लिए ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, राइट। पर्पस वाले कौन से हैं? दैट, लेस्ट, सो दैट। कंडीशन वाले हैं इफ़, अनलेस, राइट। तो इसमें एग्जांपल्स गिवन है, हर किसी में आप देख सकते हैं एग्जांपल्स को, एग्जांपल्स से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन के लिए एज देन, राइट, एज टॉल एज शॉर्ट एज हरीड एज, राइट, एज सून एज। सो ये सारे कंपैरिजन के लिए एज डैश एज है ना। देन क्यों आएगा? देन भी किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। जैसे तरुणा इज टॉलर देन साहिबा, तो तरुणा और साहिबा ये दोनों क्या है? ये दोनों दो पर्सन हैं जो आपस में जिनमें कंपैरिजन हो रहा है, जिनकी हाइट का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने देन यूज़ किया है। तरुणा इज टॉलर देन साहिबा, राइट। सो रिजल्ट के लिए सो दैट, सच दैट, प्रकाश स्पोक सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स। सो वो तेज़ बोला, इतनी तेज़ बोला कि समझ में भी नहीं आया। ये क्या है? समझ में ना आना क्या है? रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है? तेज़ बोलने का, मतलब तेज़ बोलने की वजह से समझ में नहीं आया, तो सो दैट इसलिए यूज़ हो रहा है बिकॉज रिजल्ट इज़ द सेंस in which we are joining the two sentences or clauses, sorry, independent clause, right? On the other hand, so that used together suggest purpose. अगर so that को एक साथ यूज़ किया जाए without anything in between them, तो एक purpose के लिए यूज़ होगा, right? Speak slowly so that I can understand, right? ये एग्जाम्पल है। रीज़न के लिए सिंस, बिकॉज, एज रीज़न के लिए यूज़ होते हैं। सिंस वी आर हेयर लेट्स एन्जॉय आवरसेल्व्स, दीज मार्केट्स आर क्राउडेड बिकॉज इट इज़ ए हॉलीडे। तो रीज़न दे रहा है ना सिंस और बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल्स में, तो रीज़न सजेस्ट करने के लिए सिंस, बिकॉज और एज यूज़ करते हैं, राइट। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ subordinating conjunctions. I think it's clear. So now we are having examples here. Identify the conjunctions and write whether they are coordinating conjunctions और subordinating conjunctions. हमें क्या करना है? कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस टाइप का है, इधर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। Here is only an artist but also an engineer. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज ये कंपैरिजन का काम कर रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो एन इंजीनियर। तो यहाँ पे बट जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। सिमिलरली इसमें हर किसी में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कंजंक्शन कौन सा है और किस टाइप का है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। सी एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। एवरी रिलीजन टीचेस डैश गॉड गॉड इज़ वन, तो हम यूज़ कर सकते हैं दैट हेयर। एवरी रिलीजन टीचेस दैट गॉड इज़
1. We looked everywhere for the lost file. Dash could not find it. यहाँ पे आ जाएगा still could not find it, right? We looked everywhere for the lost file, still could not find it. या but भी आ सकता है, but could not find it, right? So we can use multiple conjunctions at a single place, but meaning or grammatical sense correct होना चाहिए. So do it by yourself. I have told you how to do the first two sentences blanks, right? So all these are to be done like in the similar way. Join the following pairs of sentences with appropriate conjunctions. इसमें दो sentences given है और join करने के लिए बोल रहा है using conjunctions. Like please rest, you will fall ill. तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आएगा? Please rest, otherwise you will fall ill. ये लिख सकते हैं otherwise is a conjunction which is joining the two sentences, right? So इस तरीके से हम join कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या यूज़ करें, राइट? जैसे फोर्थ और देख लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ, और वी स्टेड विद आवर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, दे हैड इनवाइटेड अस. तो वी स्टेड विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे हैड इनवाइटेड अस, ये आ सकता है बिकॉज, राइट? सो इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को बाय यूजिंग कंजंक्शंस. तो आप कंजंक्शंस की ऊपर टाइप्स में से हेल्प ले सकते हैं कि क्या आएगा, एग्जाम्पल्स को देख के समझ सकते हैं, उसके बाद उस एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं. आई टोल्ड यू हाउ टू डू. एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, दो एक एक बता दिया है, एक बता दिया सबका. तो डू इट बाय योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही बहुत है, चैप्टर फिनिश हो चुका है. सो दिस इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर. We'll start a new chapter in next session, I think. So thank you very much.